Okay, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, so let's start with the lecture. In the meanwhile, students will join us. So today we are going to move forward with the next topics. And if you remember, we left with this topic that is about quality factor and bandwidth. Okay, but you need to refresh what we have studied in our previous class. You remember that we were talking about force vibration. Okay, and particularly the force was harmonic excitation. Okay, or harmonic force that is represented by F is equal to that is actually F is equal to F not cos omega t. So this is actually the force. Okay, and then in that topic we further discussed about magnification factor. Okay, or amplitude ratio, and that was what? That was this dynamic displacement divided by static displacement. Okay, the एक्सक्यूज displacement. मी सर. जी. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो साउंड इन आ रहे सर, वैसे शोर आ रहे बैकग्राउंड में. Background is sure. I यस. mean, okay, turn off your mic. Anybody else जिसको मेरी आवाज सही नहीं आ रही? सर बस सही है सर Because जी. ठीक सही है, है. because I am in a quiet place, okay? So इसलिए मेरे पास कोई वो आवाज वगैरह का इशू नहीं है. Kindly turn off your mic, तो शायद आपको आवाज सही आ. ठीक है. Anyway, ठीक है सर जी. okay. So you सर ये see, दोबारा स्टार्ट करें सर, ये दोबारा से स्टार्ट. okay. So I was telling you that you need to refresh what we have studied in our previous class, right? So we discussed about the force vibration, and that force was harmonic force that is represented by this one. Okay, in that context, we developed or we derived the equation of motion, and then after that, we also solved that equation of motion to find out the response of the system. And if you remember, we talked about the transient response, okay, and similarly the steady state response. Transient response is due to the free vibration, or it is associated with free vibration, and it vanishes after some time, but the system vibrates with a steady state response, okay. And if you remove that force, okay, in simple words, if that vibrating body stops, okay, its vibration, then there is no vibration over there, okay. In that context, we were there that like we cannot use that equation directly for all values of r, okay. You remember this thing. I am just refreshing what we have studied in previous class. तो हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास r is equal to omega over omega n, right? So the equation or the solution of that non-homogeneous equation we developed was, for omega divided by omega n, okay, it gives us the infinity value. Okay, if r is equal to 1, ठीक है, उसके ऊपर हमें infinity value दे रहा था, तो फिर हमने जो है एल्फेटल रूल यूज किया, that formula that last we developed is valid for all values of omega by omega n. Okay. Now in that context, this is basically the magnification factor. ठीक है, ये हमने अच्छा, so पहले हमने undamped vibration के लिए डिस्कस किया था, if you remember, and then we talked about damped vibration. ठीक है, so if you remember, we were having this equation mx equal dot plus cx dot plus kx, and this was equal to f naught cos या sin omega t, right? So then if you solve that equation, okay, we ultimately had this, factor, and this was basically magnification factor for damped vibration, damped force vibration, okay. So यहाँ पे if you see, this is actually dynamic displacement and this is static displacement, okay.
Now, what I'm going to tell you here is that if you have this factor, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास इस चीज के बराबर था, 1/1 - r² होल स्क्वायर प्लस 2ζr होल स्क्वायर. This equation 3.30, this is the magnification factor, okay, for damped force vibration and the force is harmonic force. यहाँ पे थोड़ा सा हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, क्वालिटी फैक्टर. ओके, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. क्वालिटी फैक्टर, आई शुड से इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज आल्सो, जिस तरह हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, that was a simple technique. If you know about the successive amplitudes of vibration, okay, you can find out the unknown coefficient of damping. C की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. इसी तरह ही क्वालिटी फैक्टर जो है ना, वो भी अगर आपको पता हो तो हम जो है सी को फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज वन थिंग. ओके, so you can say that by, you know, this quality factor you can find out the value of the unknown coefficient of damping. One. Second thing is that quality factor is actually very important. Okay, um, quality factor is basically, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, that is energy absorbed by the system divided by energy dissipated per cycle. ठीक है, यानी क्वालिटी जो अपने पास एनर्जी एब्जॉर्ब है, कितनी एनर्जी जो है ना ये लेता है, ठीक है, और कितनी एनर्जी डिसिपेट करता है पर साइकिल, इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर. यू कैन सी दैट अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई है, ठीक है, इससे क्या मतलब है, इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब लेट से कांस्टेंट है, तो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल जो है उसका क्या होगा, लो होगा. ठीक है, जितना हाई क्वालिटी फैक्टर होगा उतना जो है ना उसकी एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल जो है वो क्या होगी, वो लो होगी. ठीक है, और आई शुड से दैट energy dissipated per cycle is, if for example very very low, you can have high quality factor. So very very low energy dissipated per cycle क्या मतलब है कि there is very small damping present over there, there is very small resistance to the vibration. ठीक है, तो इसलिए जो है ना बातों का जो है हमें हाई क्वालिटी फैक्टर चाहिए होता है. ठीक है, ताकि एनर्जी डिसिपेशन जो है ना वो कम से कम हो जाए. इफ यू रिमेंबर, बिल्कुल शुरू की क्लासों में अगर आपने देखा हो तो एक स्लाइड में मैंने आपको बताया था, इसकी डिटेल में हम जाते हैं. अच्छा, लेकिन जस्ट आई वांट टू गिव यू द what should I say, a little bit elaborated, you know, version of this quality factor. If you remember, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है ना एक क्वार्ट्ज ट्यूनिंग फोक होता है, राइट. दिस इज एक्चुअली दैट क्वार्ट्ज ट्यूनिंग फोक, राइट. एक ट्यूनिंग फोक ही है बट इट इज मेड ऑफ क्वार्ट्ज. ठीक है, क्वार्ट्ज, यू नो, this is piezoelectric material. Okay, so if you give electric potential to it, so it strain is produced over there. ठीक है, you can say you can vibrate this tuning fork. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस अगर आप जो है ना इसको वोल्टेज दे दें तो ये वाइब्रेट करता है. एंड वाइस इज आल्सो ट्रू इज इलेक्ट्रिक मटेरियल में, अगर आप इसके ऊपर स्ट्रेन को प्रोड्यूस स्ट्रेन अगर आप लगाते हैं तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है या वोल्टेज देता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है. एनीवे, तो जस्ट आई वाज टेलिंग यू दैट कि यहाँ पे ये जो आपके पास जो ट्यूनिंग फोक है, जो एज रिसीव्ड होते हैं ना कंपनी जिसको बेचते हैं, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इनसाइड अ वैक्यूम कैनिस्टर. ये बिल्कुल बंद होता है. अच्छा, दिस इज एक्चुअली इनसाइड अ वैक्यूम कैनिस्टर. ठीक है, तो बिल्कुल ये बंद होता है वैक्यूम कैनिस्टर में. और यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर होता है ना वो तकरीबन बहुत कम प्रेशर होता है, इसलिए हम इसको वैक्यूम कहते हैं. 10 पावर -5 टार तक होता है ये. ठीक है, -5 टार इतना प्रेशर होता है, नहीं ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है. तो वैक्यूम से क्या मतलब है कि यहाँ पे जब इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं या वोल्टेज देते हैं तो इट वाइब्रेट्स, राइट, and it vibrates, and since it is in a vacuum canister, what does it mean? This means that resistance to the vibration is very very low. ठीक है, यहाँ पे जो डैम्पिंग ईयर डैम्पिंग की प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ही कम है. इससे क्या मतलब है कि वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देते हैं तो एनर्जी डिसिपेशन जो है ना इसकी बहुत कम है. वाई? बिकॉज द डैम्पर इज नॉट देयर.
or the damping property is very very low. Okay, I should say this zeta, यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, this zeta is very low. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास जीटा या सी जो है ये बहुत ही कम हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल है वो जो है ना वो बहुत कम होगा, एंड एज अ रिजल्ट वी आर हैविंग हाई क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस क्वार्ट्ज ट्यूनिंग फोर्क. ठीक है, तो ये हमारे पास हाई क्वालिटी फैक्टर होता है. अच्छा, ये क्यों हम एनर्जी एब्जॉर्ब को डिस्कस नहीं करते? बिकॉज एनर्जी एब्जॉर्ब इज, लेट्स से इन दिस केस एनर्जी एब्जॉर्ब इज कांस्टेंटली. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू गिव 20 मिलीवोल्ट आरएमएस, अगर 20 मिलीवोल्ट आरएमएस वोल्टेज आप इसको देते हैं ना तो वो कांस्टेंट वोल्टेज होता है. ठीक है, वो चेंज नहीं होता. लेकिन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल जो है अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि इसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, ज्यादा है. ठीक है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये कि आपने इनिशियली इसको वाइब्रेट कराया एंड इट वाइब्रेट्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड फॉर दैट रीजन इफ यू सी आपके जो एनालॉग वॉचेस है ना उसमें क्वार्ट्ज ट्यूनिंग फोक जो है एज अ टाइम कीपिंग एलिमेंट यूज होता है. एक मरतबा जब आप इसको वाइब्रेट करते हैं ना तो यू कैन वाइब्रेट इट फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है, एंड इट एक्चुअली मेजर्स द फ्रीक्वेंसी और अल्टीमेटली जो है ना ये आपको टाइम भी देता है. ठीक है, तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि क्वालिटी फैक्टर जो है ना दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, राइट. यहाँ पे हम मैकेनिकली इसको क्यों स्टडी करते हैं, दैट इज विथ जितना हाई क्वालिटी फैक्टर होगा, लेट मी टेल यू कि इसका जो ग्राफ होगा ना शायद आगे होगा भी, इसका जो ग्राफ होता है उतना ही उसका पीक ज्यादा होगा. ठीक है, लाइक दिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाई क्वालिटी फैक्टर का जो है ना इस तरह का ग्राफ होगा. ठीक है, जितना वाई बिकॉज डैम्पिंग इज यहाँ पे जो इसका ओवरशूट है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, और अगर आपके पास जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम है तो इट विल बी हैविंग दिस थिंग, और ये हमारे पास होता है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज एक्चुअली द ग्राफ फॉर द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस quartz tuning fork encapsulated in a vacuum canister. But if you remove this vacuum canister, अगर इसको आप रिमूव करें ना, ठीक है, और रिमूव करते भी हैं, अच्छा देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, इसको हम रिमूव करते हैं फॉर सर्टेन रीजन. तो जब आप इसको रिमूव करते हैं और इसको एम्बिएंट एनवायरनमेंट में लेके आते हैं एंड देन यू गिव द सेम 20 मिलीवोल्ट आरएमएस, तो यहाँ पे चूंकि एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये जब वाइब्रेट करता है तो इसका जो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल है वो ज्यादा हो जाती है. तो अगर एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल इंक्रीजेज तो आपका क्वालिटी फैक्टर जो है ना क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है. यू कैन गेट सिमिलर ग्राफ. ठीक है, यहाँ इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे होता है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली क्यों हम इसको जो है ना इनकैप्सुलेट ये जो आपके पास वैक्यूम कैनिस्टर है उससे निकालते हैं, because we are using this for some microscopy techniques and we are attaching a tip to this one. ठीक है, इसके साथ एक टिप हम अटैच करते हैं फिर इसकी स्कैनिंग करते हैं. तो ये टिप अटैचमेंट के लिए आपने इसको बाहर निकालना होगा. जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हैं वैक्यूम कैनिस्टर से तो ये एम्बिएंट एनवायरनमेंट जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसको एक्सपोज हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली दैट प्रेशर जो कि आपके पास एम्बिएंट प्रेशर है दैट इज वेरी वेरी हायर देन दिस वैक्यूम, दैट इज 10⁻⁶ -5 टार. तो इसलिए जो है ना ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है एंड एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट क्वालिटी फैक्टर डिक्रीजेस, राइट. सो हाई क्वालिटी फैक्टर अगर आपके पास है तो इट द सिस्टम शुड वाइब्रेट रेजोनेट फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है, एंड अगर लो है तो यहाँ पे ये ओरिजिनल पोजीशन को जल्दी से रिगेन कर लेता है, राइट. तो इसीलिए जो है ना हमारे पास क्या है कि क्वालिटी फैक्टर अगर आपको पता है तो यहाँ से फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मच coefficient of how much resistance to the vibration is there, or in other words what resistance, that is basically dissipation of energy. तो बेसिकली जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम द क्वालिटी फैक्टर. ठीक है, और बैंडविड्थ भी आगे हम डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव एक्चुअली द क्वालिटी फैक्टर फार्मूला इन टू वेज. ठीक है, ये बैंडविड्थ अमूमन इलेक्ट्रिकल वाले जो है ना ज्यादा इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, ट्यूनिंग आपने देखा होगा, रेडियो की ट्यूनिंग वगैरह करते होते हैं. ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी से जो है ना शुरू करते हैं, स्वीप करते हैं और किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटर है वो रिसीवर के बराबर हो जाती है, तो वहाँ वो मैक्सिमम सिग्नल जो है कैच करता है. तो तभी जो है ना आपको सही आवाज सुनाई देती है, राइट. तो ये भी बहरहाल हम मैकेनिकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बट दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. एनीवे, तो यू सी कैपिटल एक्स बाय delta is T. This is the quality factor that is having this formula. Now they are saying that for small values of damping, ठीक है,
अगर आपके पास डैम्पिंग की वैल्यू बहुत कम हो, मींस क्वालिटी फैक्टर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो वी कैन टेक कि हम जो है ना, ये जो आपके पास इक्वेशन 3.30 है ना, इसको हम इस तरह अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स बाय डेल्टा एस टी, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, फॉर ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, जिस तरह मैंने आपको ये बताया, ठीक है, ये ग्राफ शायद आपको थोड़ा कंजेस्ट हो गया, बट बहरहाल यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो आपके पास ये पीक है, पीक, ठीक है, ये रेजोनेंस यहाँ पे, ये आपको मैक्सिमम यहाँ पे देगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली कैपिटल एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एस टी, ठीक है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है, वो आपके पास ओमेगा और ओमेगा एन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन इन आर इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर आपके पास मैक्सिमम होगा, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जो है हमारे पास दिस इज इफ यू टेक ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, तो आपके पास ये चीज जो है यू नो ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, और ये जो है ना आपके पास 1/2 जीटा आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये इस इक्वेशन से आता है, ठीक है, एंड क्यू, तो ये जो आपके पास चीज है ना, दिस वन, ये जो एक्स बाय डेल्टा एस टी मैक्सिमम, इसकी जनरल वैल्यू तो अपनी है, लेकिन अगर ये मैक्सिमम या पीक के ऊपर हो, या ये जो रेजोनेंस के ऊपर हो ना, तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर आप जो है ना एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स एस टी, अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन के ऊपर इक्वेशन 3.30 को अगर आप सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास यही चीज आती है, ठीक है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 1/2 जीटा। तो आई वाज टेलिंग यू कि इफ यू नो अबाउट दिस क्यू, ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीटा फ्रॉम हियर, ठीक है, और जब आपके पास वैल्यू ऑफ जीटा आती है, तो यू नो वेरी वेल दैट सी डिवाइड बाय सी सी और सी डिवाइड बाय 2m ओमेगा एन, तो ये चीजें आपको पता होंगी, राइट, एंड दिस जीटा इज नोन टू यू, सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, जो कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि वी कैन फाइंड एक्सक्यूज आउट मी द सर। वैल्यू ऑफ, बस। सर ये पिछला जो आपने इक्वेशन प्रूव किए है ना सर, ये एक्स डिवाइड बाय ये डैश टी, इसको सर हम मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं ना सर। यस, तो ये क्वालिटी तब बनेगा, मतलब क्वालिटी फैक्टर तब बनेगा जब हम लोग इसको मैक्सिमम तक पहुंचाएंगे सर। एक्चुअली यहाँ पे आप देखें ना, ये ग्राफ से शो किया गया है, लोग ये क्या है, दिस, या ये व्हाट इज दिस, दिस इज सिग्निफिकेशन फैक्टर, राइट, ये चीज हमने देखी थी, अच्छा, प्रीवियसली, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रीक्वेंसी रेशो, राइट, आर, ये प्लॉट हमने बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे इस लेक्चर में सुनी है, बट इफ यू लुक एट द प्रीवियस लेक्चर, तो ये ग्राफ हमने, इफ यू रिमेंबर, वी प्लॉटेड different, we plotted this magnification factor for against this frequency ratio for different values of zeta, you remember that? यस सर। हाँ, तो ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा के लिए हमने मैग्निफिकेशन फैक्टर को अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी रेशो ये प्लॉट किया था, ठीक है, उसी प्लॉट से ही हमने जो है ये एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, और क्या है वो कि अगर आपके पास जो है ना जीटा की वैल्यू जो है वो, अगर आप वहां से भी देख लें, तो अगर वो लेस देन 0.05 है ना, तो आपके पास इस तरह का कोई आएगा, ठीक है, ये इसमें फिर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज दिस, ये आपके पास क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर, दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर, this is value of magnification factor, this is value of magnification factor, but if you take the maximum value of magnification factor, that is basically known as this quality factor, ठीक है, and at r is equal to 1, ठीक है, तो r is equal to 1 means omega is equal to omega n, the natural frequency is equal to the forcing frequency, ठीक है, तो अगर इस कंडीशन के ऊपर, इस r इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है ना मैग्निफिकेशन फैक्टर की, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, ये, तो आई शुड से दैट x डिवाइड बाय डेल्टा एस टी, ठीक है, ये तो जनरल है, बट इफ यू टेक दिस एज अ मैक्सिमम r, you can say that omega is equal to, क्योंकि this is also a value, this is also a value of magnification factor, this one, but the maximum value is this one, ठीक है,
तो इसलिए जो है ना हम इसको कहते हैं, एक नाम देते हैं इसको, हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। The value of the magnification factor at r is equal to 1 and the maximum value that is known as quality factor, ठीक है। बट रिमेंबर दिस इज फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ जीटा, ये एक हमारे पास जो है ना असम्पशन है। बात समझ आ गई आपको? ओके सर, वो सिर्फ जीटा स्मॉल रखें। यस, तो ये जो है ना आपके पास क्या है, ये चीज है। अब यहाँ पे लेट मी रब दिस अ लिटिल बिट ताकि क्लियर हो। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस जीटा फ्रॉम द क्वालिटी फैक्टर। अगर क्वालिटी फैक्टर आपको नोन है तो यहाँ से जो है ना आप जीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर कैसे आप नोन कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज, बट एनीवे कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं, ठीक है, कुछ जो है ना एनालिटिकल मेथड हैं। बहरहाल इसकी डिटेल में हम नहीं जाते और ना आपकी ये कोर्स में है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हम उसको डिस्कस कर भी सकते हैं। हम जो है ना बेसिकली स्वीप करते हैं, ठीक है। You are giving a voltage to a vibrating body and you are constantly measuring its amplitude, ठीक है। और वहां पे जो है ना डायरेक्टली पे कर्व फिट होता है, ट्यूनिंग होती है, और कर्व फिटिंग यू नो, कर्व फिटिंग से बेसिकली आपके पास जो अननोन वैल्यूज है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आपको मिलती है, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज क्वालिटी फैक्टर। तो ये क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना, रिमेंबर दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट, बिकॉज 1/2 जीटा, जीटा जो है ये फैक्टर है, सी ओवर सी सी है ना, तो यूनिट कैंसल आउट हो जाते हैं। अच्छा, तो रिमेंबर दैट दिस क्वालिटी फैक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट, ठीक है। इसकी वैल्यू 5000 8000 सिमिलरली इस तरह होता है हमारे पास। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इफ द क्वार्ट्ज ट्यूनिंग फोक इज एनकैप्सुलेटेड इन दैट वैक्यूम कैनिस्टर, तो उसकी जो हमने देखी है तो उसका क्वालिटी फैक्टर जो है ना अराउंड 80,000, 50,000 टू 80,000 होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इससे वैक्यूम कैनिस्टर को रिमूव करते हैं तो वो जो है इट डिक्रीजेस फ्रॉम दैट 50,000 80,000 टू 8,000 और 5,000, इट डिपेंड्स किस तरह जो है ना आप वैक्यूम कैनिस्टर रिमूव करते हैं, ठीक है। कोई डैमेज वगैरह होता है तो और भी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। एंड द रीजन ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ the quality factor is very obvious because you have now the tuning fork that is vibrating, it is exposed to the ambient environment where we have STP, right, standard temperature and pressure, and that pressure is way less greater than inside that is inside that vacuum canister, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे जो है क्वालिटी फैक्टर अगर नोन है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीटा, एंड इफ द वैल्यू ऑफ जीटा दैट इज द डैम्पिंग फैक्टर इज नोन टू यू, वी कैन फाइंड आउट द अननोन कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, शायद आगे दिया भी हो। अच्छा, ये जो बैंड विड्थ है ना, ये क्या है, बेसिकली बैंड विड्थ इज यू नो जहाँ पे दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। व्हाट इज दिस ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1? आप लोगों ने ये, बल्कि यहाँ पे है भी, ये तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले इसको जो है ना साइक्लिक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं, एफ सी डिवाइड बाय डेल्टा एफ। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ सी डिवाइड बाय F2 माइनस F1, आई शुड से दिस वन। तो यू नो वेरी वेल दैट ये दोनों जो है ना इंटर कन्वर्टेबल है, सर्कुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड दिस सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दीज आर the cyclic frequencies, and they are 2 pi f is equal to m. Anyway, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज फुल, व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा एफ, राइट। ये आपने नाम सुना है फुल विड्थ हाफ मैक्स का, फुल विड्थ हाफ मैक्स, ठीक है। ये एक टर्म जो है ना हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे। फुल विड्थ हाफ मैक्स का क्या है कि इफ यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ कर्व, ठीक है, तो दिस इज, ये मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। और ये आई शुड से दिस वन इज द फुल विड्थ, ठीक है, ये फुल विड्थ है। यहाँ जहां से ये फ्लैटन होना शुरू हो जाता है, बल्कि यहाँ पे चले आप ये यहाँ से लिख दे सकते हैं कि दिस इज योर, क्योंकि ये व्यू जो है ना एक एग्जैजरेटेड व्यू है, अगर इसको जो है ना आप जूम आउट करेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइंस नजर आएंगी, यू विल गेट दीज ए स्ट्रेट लाइन। तो फुल विड्थ इज आई शुड से दिस वन, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि फुल विड्थ फुल मिक्स, ठीक है, तो वो ये पॉइंट होगा,
लेकिन फुल विड्थ का आपके पास हाफ मैक्सिमम, यानी आप ट्रेवल करते हैं मैक्सिमम की तरफ, जब आप हाफ तक पहुंच जाते हैं ना तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। सो आई शुड से दैट दिस इज योर फुल विड्थ हाफ मैक्स। व्हाट इज दिस? फुल विड्थ, फुल विड्थ का हाफ मैक्सिमम। तो ये यहाँ पे ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप नीचे पर आते हैं ना, ठीक है, नीचे ड्रा करते हैं तो ये ऑब्वियसली आपको दो फ्रीक्वेंसीज देता है। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी रेशो R1 एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी रेशो R2, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना फिर आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास जो क्वालिटी फैक्टर होगा, क्वालिटी फैक्टर दैट विल बी यू नो दिस ओमेगा इन डिवाइड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस Q इज इक्वल टू आर एफ डिवाइड बाय R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ से इफ यू नो, इसलिए हम इसको ट्यूनिंग कहते हैं। दिस इज बेसिकली दैट ट्यूनिंग आई टोल्ड यू दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट ट्यूनिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से जो है ना इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप ट्यूनिंग स्टार्ट करते हैं एंड यू आर ट्यूनिंग दैट टू दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दरमियान में जो यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल है दैट आर मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम इसको कहते हैं फुल विड्थ हाफ मैक्स, ठीक है। तो ये दो ये आपके पास कंटिन्यूएशन में फार्मूला है। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 जीटा इज इक्वल टू, इस ग्राफ से जो है ना आप ये भी देख सकते हैं कि दैट इज ओमेगा एन डिवाइड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। और आई शुड से दैट दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फुल विड्थ हाफ मैक्स डेल्टा एफ। तो ये जो है ना आपके पास ये इसका फार्मूला आता है, ठीक है। तो इफ लाइक अगर ट्यूनिंग आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सर्टन टू सर्टन फ्रीक्वेंसी दैट विल बी योर डेल्टा एफ। जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको मैक्सिमम सिग्नल मिलते हैं तो दैट इज योर एफ सी। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, एंड इफ दिस क्वांटिटी इज नोन टू यू दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1/2 जीटा और दिस इज क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ से जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं जीटा को, एंड अल्टीमेटली गोल इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम हियर, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज आप देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। डेल्टा ये जो आपके पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, दिस इज 2 जीटा ओमेगा इन के बराबर आता है हमारे पास, एंड यू नो वेरी वेल दैट ये चीज हमने डिस्कस की, ठीक है। ये इक्वेशन है, एक दूसरे के हम अंदर जो है ना पुट करते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में मैंने नहीं रखे, बट बहरहाल ये मैंने ग्राफ के ऊपर रखे हैं, ठीक है। तो वी हैव दिस इक्वेशन 3.46 वेयर द क्वालिटी फैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो फार्मूले की इजम्पशन है, अच्छा यू नो वेरी वेल दैट इज 0.05। इस इजम्पशन के थ्रू जो है ना हमने ये फार्मूला निकाला है, अच्छा दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन, और इसको जो है ना आप बैंडविड्थ से भी कर सकते हैं। So you can say that it can be seen that the quality factor Q can be used for estimating the equivalent viscous damping in a mechanical system. Why we say this is equivalent viscous? Because you know viscous damping is something else. ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास if there is quartz tuning fork, okay, and you remove that canister and it is now exposed, for example, to let's say ambient environment, तो यहाँ पे आपके पास कोई जो है ना कन्वेंशनल डैशपॉट नहीं है, कन्वेंशनल डैम्पर नहीं है, बट द एयर रेजिस्टेंस इज देयर, ठीक है। दैट एयर रेजिस्टेंस यू कैन से दैट इट इज एक्टिंग एज द डैम्पर ओवर हियर। तो तभी जो यहाँ पे आपके पास जो डैम्पिंग की प्रॉपर्टी है दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली यू नो सी, बट दैट इज इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग, ठीक है। इसलिए जो है ना हम इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये इक्वेशन यहाँ पे पुट की है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भाई कंबाइनिंग इक्वेशन 3.38 एंड 3.45, तो ये जो है ना इस इक्वेशन से हमारे पास ये चीज आती है, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी, आर यू ये देयर? बैंडविड्थ का अगर फिजिकली में बता दे, मतलब फिजिकल क्या मतलब इसका? अच्छा, बैंडविड्थ इज नथिंग, ठीक है, बट इट इज बेसिकली यू नो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि ये क्वालिटी फैक्टर जो है ना ये इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, अच्छा दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टर्म, राइट।
लेकिन बहरहाल आप अपने हद तक इसको समझें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, लाइक पर्टिकुलरली इन नैनोमेट्रोलॉजी। बट ये जो है मैं आपको जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ ताकि आप अपने कंटेक्स्ट से इस चीज को समझे। ये जो आपके पास क्वालिटी फैक्टर है, मैंने शुरू में आपको बताया कि यू कैन फाइंड आउट द अननोन कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग फ्रॉम हियर, राइट। सी की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करते हैं। अब ये अगर आपके पास ये फार्मूला है 1/2 जीटा, ठीक है, तो यस, you can find out the value of zeta, and from zeta you can find out the value of c. This is you can understand, but how to find out quality factor, ठीक है। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि एक के डिफरेंट वेज हैं। समटाइम्स इट इज फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली, राइट। एनालिटिकली जो है ना, हम इसको इस ग्राफ से, क्योंकि ये ग्राफ आपने पढ़ा है फॉर वैल्यूज जीटा, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था कि जीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए यू कैन प्लॉट मैग्निफिकेशन फैक्टर और एम्पलीट्यूड रेशो। लेकिन वहां पे अगर आप देखें तो जीटा लेस देन 0.05 के नीचे जो ग्राफ्स है ना, वो आपको इस तरह नजर आएंगे जो कि आपके पास ये है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, हम अगर उस ग्राफ को देख लें, ठीक है, तो वहां से हाउ टू फाइंड आउट दिस क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथोडोलॉजी जो हमारे पास है ना, वो ये है कि बैंडविड्थ अगर आपको पता हो ना, ठीक है, दिस इज बैंडविड्थ, राइट। तो ये चीज अगर आपको पता हो, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वालिटी फैक्टर। और ये मैंने आपको बता दिया, यू स्टार्ट ट्यूनिंग द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ओमेगा 1 से जो है ना आप ट्यूनिंग स्टार्ट करते हैं, ओमेगा 2 तक जाते हैं, जहां पे आपको मैक्सिमम पीक मिलता है ना, दैट इज योर ओमेगा एन। So if you know about omega 1, omega 2 and omega n, or if you can convert this to f1, f2, this will be delta f, and similarly यहाँ पे जो है आपके पास fc आ जाएगा। तो ये चीजें जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं, and if you know about these things you can readily put it here, right? So you can find out the value of this one. And what is this? This is basically your quality factor. So quality factor will be known to you, and then you can find out the value of zeta and ultimately the value of c from here. Now you understand? हाँ जी, समझ आ गई? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now discussing about the quality factor, थोड़ा सा आप बुक में भी पढ़ लें, आपकी बुक में होगा। Actually this thing is not included. ये कभी मैं पढ़ाता हूँ, कभी नहीं पढ़ाता, बिकॉज इसकी बहुत इंटरप्रिटेशन है। बट एनीवे, एटलीस्ट यू नीड टू नो कि भाई क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। आगे अगर किसी जगह पे आप जो है ना नाम सुने, तो एटलीस्ट आपको नो हाउ हो कि भाई क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं और ये क्यों सिग्निफिकेंट है। Okay, now discussing quality factor, let us look at this next topic, and that is response of a damped system under the harmonic motion of the bass, right? इस चीज को समझे अच्छा, और समझना क्यों है कि this is basically related to another topic, and if you look at your course content, तो हमारे पास एक टॉपिक है वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आजकल तो बड़े सोफिस्टिकेटेड वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट देम, बट एटलीस्ट वी नीड टू नो द बेसिक वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, पर्टिकुलरली वाइब्रोमीटर, एक्सेलेरोमीटर एंड वेलोसिटीमीटर। तो ये तीन जो है ना हमारे पास वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि वाइब्रेशन को मेजर करते हैं, और पर्टिकुलरली एक्सेलेरोमीटर एक्सेट्रा। तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, या वर्किंग प्रिंसिपल है, वो इस चीज के साथ रिलेटेड है। अच्छा, और आई शुड से दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को जो है ना आप समझें, और इसी टॉपिक के रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे टू डिफाइन टू डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बेसिक वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये कमेंट आपके जहन में हो, राइट। ओके, नाउ you can see here that previously we discussed about because this is actually chapter that is related to force vibration, ठीक है। तो force vibration का chapter है। तो if you remember or recall,
तो हमने जो है इनिशियली फोर्स, जो हमने फोर्स कंसिडर किया था, दैट वाज हार्मोनिक फोर्स, राइट, एंड दैट वाज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द सिस्टम। यानी आपके पास जो फोर्स था ना, दैट वाज एक्चुअली अप्लाइड ऑन दिस मास डायरेक्टली, right? And you found out, or you derived the equation of motion, and similarly you solved that equation of motion to find out the response of the system. That was our first case. And then if you remember, I gave you an assignment that if that force is due to rotating unbalance, यानी डायरेक्टली जो है ना फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, but there is unbalanced mass over there and it is rotating, and due to that rotation of mass, a force that is either in the upward or in the downward direction, it is applied on that this system. Okay, and you need to develop the equation of motion and similarly solve that equation of motion to find out the response of the system. तो दो चीजें हमने पढ़ी थी. Now the third thing is that sometimes, okay, the force is not applied directly on the system, neither there is no rotating mass, okay, that is causing this force to act upon these installations, but there is some excitation from the base. The very simple example is that if your car or bicycle that is actually moving on a wavy road, ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो एक सिंपल एक वो है एक सिचुएशन है, एक सिंपल फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का एक रोड है, लेट से हम जो है ना फिक्टिशियसली उसको फैब्रिकेट करते हैं कि इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ वेवी रोड एंड द बाईसाइकिल आर कार इज मूविंग ऑन दिस, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है ना, दैट इज आर एक्साइटेशन दैट इज फ्रॉम दिस बेस। तो ये एक्साइटेशन जो है ना वो बेस से आती है, ठीक है, डायरेक्टली नॉट अप्लाइड ऑन द मास। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस कि प्रीवियसली हमने जो केस पढ़ा है, दैट इज फोर्स, दैट इज द साइनसॉइडल फोर्स, इट इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द मास, ठीक है। सेकंड केस में द मास बाय इटसेल्फ इज रोटेटिंग एंड द फोर्स इज अप्लाइड। नाउ हियर यू नो प्रीवियसली इफ यू रिमेंबर, तो हमारे पास क्या था कि दिस वाज फिक्स्ड, ठीक है, the mass that is attached to this fixed support with the help of a spring having stiffness K and coefficient of damping C, okay, तो ये जो है ना इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर देते, तो ये डिस्कस किया हमने। नाउ इन दिस केस द बेस बाय इटसेल्फ इट इज वाइब्रेटिंग, ठीक है, इट इज नॉट स्टेशनरी, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे एक्साइटेशन इससे इसको मिल रही है, ठीक है, और लेट्स से ये साइनोसाइडल एक्साइटेशन है, तो आप जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है ना डिराइव करें और उसको जो है ना ये सोल्यूशन वगैरह फाइंड आउट कर लें, ठीक है, इससे आपके पास डिफरेंट चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो ये जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड देयर इज अनदर थिंग आल्सो, ये मैंने आपको बताया था, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ पोर्टेबल वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो आपके पास लेट्स से दिस इज अ मशीन that is having vibration and you put that equipment over here, ठीक है, या एक्सेलेरोमीटर जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, वाइब्रोमीटर यहाँ पे आप इंस्टॉल करते हैं, तो इस वाइब्रोमीटर को वाइब्रेशन कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द बेस मिलेगी। बात समझ आ गई आपको? तो तभी जो है ना हम ये डिस्कस करते हैं कि इफ द सिस्टम इज वाइब्रेटिंग फ्रॉम द बेस और इट इज हैविंग हार्मोनिक मोशन ऑफ द बेस, तो हाउ यू कैन डेवलप द फार्मूला एंड रेलेवेंट टर्म्स। बात समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, तो तो इसको थोड़ा समझिए, अच्छा, बिकॉज वी विल नॉट डिस्कस दीज थिंग्स इन वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली हम इनके रिजल्ट्स को यूज करेंगे। यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग। अच्छा, तो यहाँ पे वी हैव दिस बेस एक्साइटेशन वेयर मास is attached to this base with the help of spring having stiffness K and damper having coefficient of damping C, and this excitation, ठीक है, ये जो बेस को एक्साइटेशन मिल रही है ना, दैट एक्साइटेशन इज साइनोसाइडल एक्साइटेशन और हार्मोनिक मोशन ऑफ द बेस, ठीक है। और यू नो वेरी वेल कि हार्मोनिक मोशन जो है ना अगर फोर्स की फॉर्म में हो तो हम इस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट या कैपिटल एफ साइन या कॉस ओमेगा टी, इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। शुरू में हमने डिस्कस किया था, कॉस भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं।
दिस इज फॉर फोर्स। अगर आपके पास एक्साइटेशन जो है ना वो क्या हो, वो साइनोसाइडल एक्साइटेशन हो, तो वो इस तरह हम जो है ना डिनोट कर सकते हैं इसको, y of t is equal to the maximum value of excitation, and how it varies like this, ठीक है। so this is basically representation, this is a representation of the harmonic motion of the bass। समझ आ गया आपको? तो ये आपके पास जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन ऑफ द बेस है। ये आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये बात की ना कि दिस इज एक्चुअली अ वेवी सरफेस एंड अ व्हीकल इज मूविंग ऑन दिस वेवी सरफेस, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको यहाँ से मिलती है ना, दैट इज कैपिटल वाई। और किस तरह ये वेरी करती है, यू नो वेरी वेल कि ये साइन ओमेगा टी के थ्रू जो है ना वेरी करती है, राइट। so this is actually a cessation from the base. Now since force is not directly applied on the system, right? Agar for example if you replace these springs and the damper, और इसको जो है ना आप कनेक्ट करें एक सॉलिड रॉड से, बात समझ आ गई आपको? इफ यू कनेक्ट दिस मास विद द बेस विद सॉलिड रॉड, तो इसको जो फोर्स मिलेगी ना वो यहाँ पे भी होगी, ठीक है। या ये अगर फॉर एग्जांपल इफ यू नो if the distance from this to that is let's say for example 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये जितना डिस्प्लेस होगा ना, तो ये मास अगर इनिशियल पोजीशन इसकी ये है तो ये अकॉर्डिंगली डिस्प्लेस होगा। दिस मीन्स दैट यू कैन फाइंड आउट दैट वेयर द मास इज, ओके। बट ये आपस में कनेक्टेड स्ट्रेट यू नो रिजिड बॉडी से नहीं है, बल्कि आपके पास जो है स्प्रिंग और डैम्पर से कनेक्टेड है। सो फॉर दैट रीजन वी डोंट नो दैट व्हाट विल बी द, ये यहाँ पे जो बेस को वाइब्रेशन मिल रही है ना, दैट इज साइनोसाइडल, एंड उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना आपके पास क्या है, कैपिटल वाई है, ठीक है। और उसकी जनरल वैल्यू दैट इज वाई ऑफ टी है, स्मॉल वाई ऑफ टी। but we don't know that how this mass is vibrating, why, because they are connected with spring and damper। तो इसीलिए जो हम फार्मूला डेवलप करने जा रहे हैं वहां पे हम देखेंगे कि भाई विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस एक्साइटेशन हाउ द मास इज वाइब्रेटिंग, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज the basic principle of accelerometer is that you need to vibrate spring mass and damper system or spring mass system, and you are actually measuring। तो वाइब्रेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि if this is the installation and you put the vibration measuring instrument here or accelerometer here, तो वाइब्रेशन इसको बेस से मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये शो करता है आपको डायल के ऊपर, तो वो डायल बेसिकली कनेक्ट होता है या अटैच होता है इस मास के साथ, ठीक है, एंड देन वी कैलिब्रेट दैट। तो इसलिए जो है ना हमारे पास अब क्या होगा कि इफ यू ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे मिलेगा? अच्छा ये यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारे पास जो y की वैल्यू है ना वो भी पॉजिटिव है इन दिस डायरेक्शन, और जो x दैट इज डिनोटिंग द मूवमेंट आर डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ मास, ये मूवमेंट ऑफ बेस है क्या, रिमेंबर, प्लस y, एंड दिस इज मूवमेंट ऑफ मास प्लस एक्स। तो ये दोनों जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीज होगी वो नेगेटिव होगी बाय कन्वेंशन। बाय द वे यू कैन चेंज दिस कन्वेंशन बट फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इट शुड रिमेन द सेम, राइट। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रा किया है इन डिस्प्लेस पोजीशन, राइट। अगर मास ऊपर डायरेक्शन में जा रही है ना तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ना दोनों पॉजिटिव है, एंड यू नो वेरी वेल दैट कि if the mass is moving in the upward direction the spring and damper both will oppose, ठीक है। तो जिस तरह ये अपोजिशन हमारे पास प्रीवियसली के एक्स और दिस वाज सी वाई, सी आई शुड से सी वाई था, सी एक्स था, अब ये इस तरह नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी हैव, बिकॉज वहां पे भी इस तरह था, राइट। over there this thing was the same, kx minus y, and this was cx dot minus y dot, but previously since this was rigid, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बल्कि ये फिक्स था, तो दिस वाज बेसिकली जीरो एंड सिमिलरली दिस वाज आल्सो जीरो। तो इसलिए हम इस तरह लिखते थे के एक्स और इसको लिखते थे सी एक्स डॉट, बट नाउ देयर इज अ रिलेटिव मोशन, so for that reason you need to show them। so kx minus y, right, this is actually relative motion, and similarly c, this is relative velocity। बहरहाल इसको समेशन ऑफ समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू इनर्शिया फोर्स करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और फ्री वाइब्रेशन, दिस इज एक्चुअली दैट वे। नाउ ये यहाँ पे
नजर आपको ऐसे आ रहा है कि दिस इज एक्चुअली फ्री वाइब्रेशन बट देयर इज एक्साइटेशन फ्रॉम द बेस। यहाँ तक समझ आ गया आपको? ये सर यहाँ सर तो जीरो है ना। जी। सर ये जितने भी लग्जरी कार है सर, जिसके सस्पेंशन लगी, वो भी सर इसी पिनामे के ऊपर काम करता है ना सर। तो दोबारा कहें। मतलब ये कि जितने भी लग्जरी कार है ना, जिस तरह मर्सिडीज बेंज हो गया मसलन, या वो हो गया सर, रोल रॉयस हो गया सर, वो भी इसके जो सस्पेंशन होते हैं वो भी इसी पिनामे के ऊपर काम करते हैं ना शॉक एब्जॉर्बर फिनोमेना तो सब में होता है ना। सर। यानी यस सर। मतलब स्प्रिंग और डैम्पर की कॉम्बिनेशन होती है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली हमारे पास जो है एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, दूसरा जो है ना एनर्जी डिसिपेशन एलिमेंट होगा। कितना एफिशिएंटली एंड सोफिस्टिकेटेडली एनर्जी स्टोरेज और डिसिपेशन होती है, वो बेसिकली कंफर्ट लेवल को डिफाइन करती है। तो जो बड़े बड़े कार हैं अच्छे और आपके पास एक्सपेंसिव कार। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि ऊपर आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम देखा है सर, इसमें जो बेस होता है और मास होता है, जब मतलब बेस ऊपर जाता है और वो फिर वापस आता है सर, तो बेस और मास के दरमियान अपोजिट मोशन होगा सर। नो, क्यों? इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। अच्छा, ये इसीलिए जो है ना हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ठीक है। यानी जी। मतलब आपके कि अगर बेस नीचे आता है और मास ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये आपके पास जो है मास इज मूविंग इन अपवर्ड एंड ये असल में इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इनर्शिया की वजह से जो है ना सर, मास फिर स्टेशनरी रहते हैं, फिर अपवर्ड जाता है, और बेस जो है ना नीचे आता है सर। दोनों तो ऊपर और नीचे जाते हैं आते हैं, ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन। ये थोड़ा सा आपने आगे क्वेश्चन किया, ये जब हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ेंगे ना, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, फिर जी यहाँ सर। पे तो हम सिंपल रिस्पांस को देखते हैं ना, कि भाई मास को आपने डिस्प्लेस किया एंड यू नो यू आर लुकिंग टू द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम बिकॉज वी हैव अ सिंगल इक्वेशन, राइट। जब आपके यस। पास फ्रीडम होता है तो वहां पे हम मोड शेप को देते हैं देखते हैं। हो सकता है कि आपके पास एक मास जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता हो, लेकिन दूसरा मास जो है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हो, तो इट सीजेस द द वाइब्रेशन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। तो आपको जो है ना ये सिस्टम की बेशक आपके पास इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज जो है उसकी ज्यादा है, मे बी आउट ऑफ रेंज भी हो, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आपके पास रेंज में होगा। एंड द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि हमारे पास वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होती है। एक मास एक जो है ना डायरेक्शन में मूव करता है, तो दूसरा मास दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है, एंड द ओवरऑल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हो सकता है, बट रिमेंबर दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंडीशन। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कि इनिशियल कंडीशन जो है आपके इसको कैसे देते हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना या इन फेज वाइब्रेशन होती है या आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन होती है। जी सर। ओके, एनीवे, तो ये आपके पास एक्सक्यूज मी इक्वेशन सर। ऑफ मोशन आ गया। जी जी। सर जी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन इसका आया है, तो सर ये तो वो उसी तरह है जिस तरह फ्री वाइब्रेशन का था, मतलब तो इसमें सर बेस का कोई फोर्स मोस नहीं होगा, मतलब ये जीरो के बजाय कोई बेस का फोर्स नहीं लगेगा। ये है ना, आप थोड़ा सा आगे इसको देखें ना, ये हम बेसिकली हमारे पास इसको हम यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि एक हमारे पास डायरेक्टली फोर्स ऑन द मास लगता है, ठीक है, दूसरा जो है ना रोटेटिंग बॉडी के थ्रू लगता है, और तीसरा जो है ना बेस एक्साइटेशन है। ठीक है, बेस एक्साइटेशन है, यानी डायरेक्टली मास के ऊपर फोर्स नहीं लग रही, लेकिन दैट इज द मोशन ऑफ द मास इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट बेस एक्साइटेशन। वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर, यही तो हम बात कर रहे हैं ना, आगे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे यार, वी विल बी कंपेयरिंग। बल्कि यहाँ पे है ये क्वेश्चन 3.66 जो है ना, इसको हम फोर्स वाइब्रेशन से कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि भाई इट इज जस्ट लाइक यू नो अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना आपको ये होमोजीनियस इक्वेशन नजर आती है। दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द सिस्टम, बट लेटर ऑन यू विल सी दैट कि हमारे पास जो है ये इट इज जस्ट लाइक अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द मास बिकॉज मास इज मूविंग। ठीक है, तो मास जब मूव करता है ना इसको एक्साइटेशन मिलती है, नॉट डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द सिस्टम बट अल्टरनेटली जो है ना, या इसको आई शुड से यानी थ्रू बेस इसको एक्साइटेशन मिलती है, तभी जो है ना यहाँ पे आपको फ्री वाइब्रेशन नजर आती है। ठीक है, बिकॉज द फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन डायरेक्टली ऑन द सिस्टम। ओके सर।
ओके, एनीवे यहाँ पे कुछ टिप्स इन्होंने जो है छोड़े हैं और कुछ एब्रिविएशन भी यूज की है, बट यू कैन जस्ट लुक एट दिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसकी इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बल्कि इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट दिस वाई ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल वाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बहरहाल इसको जो है इसने रीअरेंज किया है यहाँ पे, यू नो, यानी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट माइनस सी वाई डॉट प्लस के एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास फिर यू नो वेरी वेल के दिस वाई ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल वाई साइन ओमेगा टी, तो ये तो आप डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका डिराइवेटिव आप लेंगे ना, इस चीज का डिराइवेटिव लेंगे तो फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, बुक ने भी डायरेक्टली इसको किया है derivative, because you need to put you if you want to solve this equation you need to put values of x dot y dot and similarly x and y over here, okay, and then you can solve it for x of t। बात समझ आ गई आपको कि नहीं? इन इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? you need to assume solutions, you need to assume solutions, right? तो previously हम जो है ना इस तरह solution assume करते हैं, xp of t is equal to let's say for example capital X, right, and this is capital X cos omega t, इस तरह हम सेलेक्ट वो करते थे, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव दिस, बिकॉज यहाँ पे y भी है, तो y इज इक्वल टू कैपिटल Y साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो है यू नीड टू डिफरेंशिएट एक्स पी ऑफ टी ट्वाइस and put the result over here in x dot के साथ। and similarly you need to um, differentiate this once, ठीक है, और यहाँ पे आप पुट करेंगे। and similarly इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट करेंगे। and same is the case over here, you need to put it directly here in place of y, you need to differentiate it once and put it over here and simplify, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है, ये आपके पास ये आ जाएगा। बहरहाल इसके बाद जो है ना आपके पास ये, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो आपके पास एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स है ना, तो ये ऑलमोस्ट वही चीज है, यू सी, राइट। अब राइट के ऊपर जो है ना आपके पास क्या है, दिस वन, ठीक है। तो अब जो है ना ये, इसको अगर आप रिड्यूस करें तो आपके पास ये चीज आ जाए, इसको अगर आप ओपन अप करें ना तो ये चीज वापस आ सकती है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे ये बताया भी है कि इफ यू सिंप्लीफाई दिस, this one ky sin omega t plus c omega capital Y cos omega t, तो ये जो है ना आपके पास ये चीज आ जाएगी, इसको हम कहते हैं a, और अल्फा जो है ना इसको हम कहते हैं टेंजेंट इनवर्स माइनस सी ओमेगा डिवाइड बाय के, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आपके पास सिंप्लीफाइड वर्जन में आ सकती है, वेयर a इज बेसिकली दिस वन एंड अल्फा इज दिस वन। अल्फा बेसिकली लेग को शो करते हैं। अच्छा, लेग, लेग का क्या मतलब है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इफ the system is excited from the base and the base is rigidly connected, let's say with rods to the mass, तो इसमें कोई लेग नहीं होगा। यहाँ पे जो आपके पास एक्साइटेशन यहाँ पे मिल रही है ना बेस को, तो वही एक्साइटेशन जो है मास को भी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास स्प्रिंग और डैम्पर है तो ऑब्वियसली इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, ठीक है, इट इंटरफेयर, तो इसलिए जो है ना ये लेग होता है, जो डिले होता है, रिस्पांस होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा। तो यू कैन सी दैट कि ये कहता है कि इफ यू नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन दैट इज एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू क्या है, दिस वन ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें एम एक्स डबल डॉट प्लस के सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जो आपके पास एफ नॉट साइन ओमेगा टी या cos ओमेगा टी था, ठीक है, प्रीवियसली। अगर इसके साथ आप कंपेयर करें ना तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके पास जो दिस इक्वेशन है, दिस इज जस्ट लाइक, यहाँ पे लिखा भी है, दिस शोज दैट गिविंग एक्साइटेशन टू द बेस इज इक्विवेलेंट टू अप्लाइंग अ हार्मोनिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए टू द मास, ठीक है। यानी अगर आप डायरेक्टली मास के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, जिस प्रीवियस केस में था, दैट वाज इफ नॉट, दिस वाज स्टैटिक फोर्स, ठीक है, एंड दिस वाज cos ओमेगा टी। ये फोर्स आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है ना
बेस एक्साइटेशन से जो फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट होती है ना, दैट इज दिस ए, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस मास। तो इसका क्या मतलब है कि इफ से अगर यहाँ पे हम इसको कर लें, तो थोड़ा सा और लेट मी रब दिस, यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन नजर आएगी, लेकिन ये बुक में एक्सप्लेन है अच्छा कि ये किस तरह जो है ना इसने ये वैल्यू लिखी है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू अदर टॉपिक्स, राइट। जो प्रीवियसली हमने स्प्रिंग मास एंड डेम्पर सिस्टम फ्री वाइब्रेशन के लिए किया है, जिसमें हमने वो रेडिकल्स और उस किस्म की चीजों को डिस्कस किया था, तो वो सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो है ना आप देख सकते हैं कि भाई हाउ यू कैन हैव दिस थिंग ओवर हियर। अब इस चीज को जो है व्हाट इज दिस, दिस इज एम एक्स डबल डॉट प्लस ई एक्स डॉट प्लस के एक्स, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन for the base excitation. When the system is excited or the base is excited for spring mass and damper system. और अगर आप देख लें तो हमारे पास एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉज और साइन ओमेगा टी, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज द सेम, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड के ऊपर जो है यहाँ पे क्या है, दिस इज ए, दिस इज एफ नॉट, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ए इज बेसिकली ए आपके पास क्या है, दिस इज एक्चुअली अ वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू एफ नॉट, ठीक है। कि यू आर बेसिकली अप्लाइंग एन इक्विवेलेंट बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट फोर्स, देयर इज एक्चुअली फोर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटेशन, तभी तो हम ये फार्मूला लिखते हैं, दिस वन y of t is equal to y sin omega t. What is y? This is actually displacement term, right? तो इसलिए जो है ना that displacement is sort of equivalent to applying a sinusoidal force on the mass, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना फिर हम क्या करते हैं कि अगर आप जो है ना इसको by using the solution indicated by equation 3.60 आगे है, पीछे हम डिस्कस किया है हमने, जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस जो है ना आपके पास क्या होगा, दिस एक्स पी ऑफ टी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। स्टडी इसका क्या मतलब है स्टडी स्टेट रिस्पांस का, कि ये जो आपके पास एक्स पी ऑफ टी, इक्वेशन हमने नहीं लिखा, एक्स पी ऑफ टी, ठीक है, दिस इज एक्चुअली स्टडी स्टेट रिस्पांस, बिकॉज यू नो कि हमारे पास जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वी नो वेरी वेल कि वो हमारे पास फ्री वाइब्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टडी स्टेट रिस्पांस है, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट। सर ये एफ नॉट का मतलब ये है कि बेस जो है ना मास पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सर? मास पर डायरेक्टली फोर्स नहीं, इक्विवेलेंट फोर्स कितना अप्लाई कर मतलब रहा स्प्रिंग और डैम्पर के थ्रू जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सर। है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली इक्विवेलेंट फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और तो इसमें जो अल्फा जो है सर वो मतलब मास कितने देर बाद वो इफेक्ट लेता है मास से, ये शो करता है। रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम को शो करता है ना, कि अगर आपके पास, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर मैं चले यहाँ पे इस तरह एक्सप्लेन करूँ तो शायद ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेट मी हैव सम फ्री स्पेस समवेयर। सर इसमें जो साइन और काज है वो ये हम एज्यूम भी किया है सर। बिल्कुल एज्यूम किया। अच्छा, इसमें बेसिकली जो मैथमेटिकल स्टेप्स है ना वो इसमें छोड़ी हुई है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन काज कर रहे हैं, बट एनीवे लेट मी टेल यू कि ये चीज सर बेसिकली हम क्यों। सर जी इधर जो मैथमेटिकल जो वो है ना सर, ये अक्सर स्टेप मिसिंग हुए हैं, तो पर सर फिर हम भी वो स्टेप साथ ना करें, हम भी बस डायरेक्ट पुट करेंगे नहीं। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अल्टीमेट रिजल्ट आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये अल्टीमेट रिजल्ट का क्या मतलब है बेसिकली, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्किप भी इसने इसलिए किए है ना कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट बेसिकली आवर थीम कि हाउ टू सॉल्व दैट। बेसिकली वी नीड टू नो दैट कि जो इसका फार्मूला आता है, तभी इफ यू रिमेंबर बिल्कुल शुरू में आपको कहा था कि देयर आर अदर बुक्स जैसे मैकेनिकल एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस बाय मिरविच, वो जो है ना वो इस किस्म की डिराइवेशन वगैरह नहीं करता, डायरेक्टली इक्वेशन लिखता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और वो फिजिकली इसकी मीनिंग क्या है। लेकिन सिंस यू आर बैचलर स्टूडेंट्स तो इसलिए जो है ना हम इन चीजों को भी थोड़ा सा
पढ़ते हैं। लेट मी टेल यू, अच्छा कि क्यों जो है ना वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो है, दिस इज फॉर एग्जांपल, लेट्स दिस इज फॉर एग्जांपल अ मास, ठीक है, एम, और यहाँ पे जो है ना ये, चले हम डेम्पर को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो लेट से फॉर एग्जांपल एट, या बिल्कुल डेम्पर को आप लगा भी सकते हैं, दिस इज एक्चुअली द डेम्पर, ठीक है। नाउ ये बेसिकली होता ये है कि दिस बेस इज हैविंग एक्साइटेशन। वो एक्साइटेशन क्या है, इट डिपेंड्स, बट यहाँ पे हम इज्यूम करते हैं कि दैट एक्साइटेशन इज व्हाट यू आर मेजरिंग। यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो वाइब्रेशन मेजरमेंट होती है ये उसके साथ रिलेटेड है। लेट्स से वेरी क्रूडली, हमारे पास जो है ना यहाँ पे वी हैव एक्चुअली अ रूलर और स्केल एंड दैट इज ग्रेजुएटेड, ठीक है, ये स्केल है हमारे पास, राइट। और लेट्स से इस मास के साथ एक स्टाइलस जो है ना हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, ठीक है, एंड दैट मूव्स ऑन दिस स्केल। अब ये जो आपके पास वाइब्रेट, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस वाइब्रेशन जो कि बेस को आ रही है, दैट वाइब्रेशन इज ऑफ सम प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई आपके पास जो है मशीन है जिसकी वाइब्रेशन है, जिसमें वाइब्रेशन है, यू आर मेजरिंग दैट वाइब्रेशन। तो इसके ऊपर जो है ना लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये एक इक्विपमेंट रख लेते हैं। अब यहाँ पे इस इक्विपमेंट को जो बेस, इसका जो बेस है उसको जो एक्साइटेशन मिलेगी दैट विल बी फ्रॉम हियर। अब ये एक्साइटेशन तो यहां से मिल रही है लेकिन यू आर मेजरिंग इट हियर। तो ये जो आपके पास एक्साइटेशन है, हाउ एक्चुअली दैट एक्साइटेशन और हाउ दैट मोशन इज ट्रांसफर्ड टू दिस मास, बिकॉज एक्चुअली यू आर मेजरिंग इट हियर। इसकी कैलिब्रेशन फिर हम करते हैं बहरहाल, लेकिन वेरी क्रूडली मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि इसके और भी मेथड्स हैं। इसकी हम इलेक्ट्रिकल या डिजिटल डिस्प्ले लेते हैं, वो किस तरह लेते हैं वो बात की बात है, लेकिन जस्ट सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस बेस इज, दिस सिस्टम इज वाइब्रेटिंग, ultimately this base is vibrating, and how much, you know, this vibration is transferred or amplitude is transferred to this mass, basically we are measuring that, ठीक है। and this, you know, this actually the movement of the stylus over the scale, it will basically give you the that how much vibration is present in this system after calibration, ठीक है। तो तभी जो है ना हम इस जो बेस एक्साइटेशन है इसको मास के ऊपर कि भाई ड्यू टू दिस बेस एक्साइटेशन हाउ द मास इज हैविंग स्टेडी स्टेट रिस्पांस। बात समझ आ गई आपको। तो वो जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो हमें यहां से मिलती है कि दिस इज बेसिकली दिस इज एक्स पी ऑफ टी, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है दिस मोस्टली जो आपके पास पैरामीटर्स हैं दे आर बेसिकली व्हाट शुड आई से, दीज पैरामीटर्स आर द सिस्टम पैरामीटर्स, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द लाइक आपके पास जो अननोन है ना फाई वन हो गया, सिमिलरली जो है वो और जो चीजें हैं दे आर बेसिकली सिस्टम पैरामीटर। so you can find out like for example if you want to find out the particular solution, so you need to know about these terms, ठीक है। और ये टर्म जो है ना either जो है कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं या सिस्टम के पैरामीटर्स हैं। तो इसलिए जो है ना यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। you know how you can find out this alpha, if you know about the coefficient of damping omega, this for this frequency, and similarly k, you can find out alpha। कैसे आप फाई वन को फाइंड आउट करते हैं, दिस इज आल्सो इन सिस्टम पैरामीटर। सिमिलरली ये सारे जो है ना आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके पास जो एक्सपी ऑफ टी है दैट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन इन सिंपल वर्ड, दैट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। इन अदर वर्ड्स दैट इज द मूवमेंट ऑफ द मास ओवर द स्केल, ठीक है। कितना जो है ना आपके पास जो मोशन है वो ट्रांसफर हुई है, you can find out the value of that, and that is basically requirement, okay। so if the system is not directly under the influence of a force, but it is the force is transmitted from the base, ठीक है। तो उससे जो है ना आपके पास कितना फोर्स ट्रांसमिट होगा, you can find out the value of that, ठीक है।
तो बहरहाल दिस इज एक्चुअली द सिंपल फार्मूला, ये यहाँ पे वही इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, दिस इज एक्चुअली एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वही चीज है। यानी एक यहाँ पे आपके पास कैपिटल एक्स का होना जरूरी है, ठीक है, कैपिटल एक्स, और बेसिकली इट विल साइनोसाइड लाइक दिस। यानी अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है, तो आपके पास ये है, एज्यूम सोल्यूशन है। इस एज्यूम सोल्यूशन में जो है ना ओमेगा टी, ये तो आपके पास है, दिस टी इज बेसिकली द टाइम, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इफ यू नो अबाउट ओमेगा भी आपको पता है, इफ यू नो अबाउट फाई एंड एक्स, ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स पी ऑफ टी, एंड दैट इज बेसिकली रिक्वायरमेंट। वाई? बिकॉज द जो आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो वेनिश हो जाता है, एंड द सिस्टम वाइब्रेट्स विद द स्टेडी स्टेट रिस्पांस, फोर्स की वजह से जो होता है। तो इसीलिए जो है ना आई शुड से दैट कि अगर आपके पास ये जो मैंने वेवी सरफेस यहाँ पे ड्रा किया था, अच्छा, तो अगर आपके पास ये वेवी सरफेस जो है ये खत्म हो जाती है, फ्लैट सरफेस आ जाती है, दैट्स इट, बिकॉज यहाँ पे अब कोई एक्साइटेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये पर्टिकुलर रिस्पांस ही आपके पास फिर यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो इक्वेशन 3.67 को यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि द स्टेडी स्टेट रिस्पांस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। So you can find out the particular response, the particular solution, or the steady state response of this system, provided that you know about capital X and you know about this phi, ठीक है। और कैपिटल एक्स जो है ना आपको कहाँ से मिलेगा, कैपिटल एक्स यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। तो कैपिटल एक्स जो है ना यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो अबाउट दिस वाई, एंड दीज आर बेसिकली सिस्टम पैरामीटर्स, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। फाई आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग दिस रिलेशनशिप वेयर ऑल दीज आर बेसिकली सिस्टम प्रॉपर्टी। तो इसलिए जो है ना इफ यू नो अबाउट कैपिटल एक्स एंड फाई यू कैन फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं दिस कैपिटल एक्स बाई वाई, ये जो चीज है ना ये बेसिकली क्या शो करती है, व्हाट इज कैपिटल एक्स, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एम। What is y? This is the maximum value of the base excitation, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो आपके पास रेशो है ना, दिस वन, ये आपके पास बेसिकली दिस इज द, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। हाउ मच डिस्प्लेस, लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज x डिवाइड बाय y, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां से इसकी वैल्यू आती है 1 यूनिटी। क्या मतलब है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू y, मतलब क्या है कि जितना, ये एक फिक्टिशियस केस है, राइट, द जितना आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेस एक्साइटेशन है वही एक्साइटेशन आपको मास के ऊपर भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली ट्रांसमिसिबिलिटी, ओके, मोशन या डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। लेकिन इस तरह होता नहीं है, ठीक है, इट डिपेंड्स, यहाँ पे शायद आगे एक एग्जांपल होगा भी। तो ये x बाई वाई जो आपके पास होता है ना, दिस इज लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से 0.5 अगर आपके पास है, इसका क्या मतलब है कि असल में आपके पास 0.5 कैपिटल वाई। अगर ये लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 है, 10 यूनिट्स, तो ये क्या होगा, दिस विल बी 5, ठीक है, दिस कैपिटल x विल बी 5, मींस 50% ऑफ दैट बेस एक्साइटेशन इज ट्रांसफर टू द सिस्टम। ये जो आप कंफर्टेबल की अभी किसी स्टूडेंट ने बात की ना, तो यहां से डिफाइन होता है कि बेस के ऊपर आपके पास जो एक्साइटेशन है एक्चुअल, दैट इज लेट्स से 10 यूनिट्स, बट ड्यू टू द सिस्टम डिजाइन दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर शॉक एब्जॉर्बर, जो कि के और जो आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ के और सी, तो वो आपने इस तरह सेलेक्ट किए हैं कि लेट्स से हाफ ऑफ दैट, लेट्स से क्वार्टर ऑफ दैट इज इट इज ट्रांसमिटेड टू मास एम। मास एम क्या है, लेट्स से अगर आपके पास गाड़ी है ना, तो ये सारा जो है आप गाड़ी में बैठे हैं, तो बेसिकली यू आर दैट मास, तो आपको जो फील होगी ना दैट विल बी 50% ऑफ दैट, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इफ यू रिमूव those spring and damper and you put let's say rigid rod, तो जितना जो है ना down there आप जो एक्साइटेशन होगी वही आपको फील होगी, ठीक है। बट इफ यू सेलेक्ट प्रॉपरली the spring and this damper, so you can decrease this
डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। बात समझ आ गई आपको? तो ये इसको हम कहते हैं TD, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, दैट। सर सर ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई का मतलब ये है कि बेस और मास के दरमियान स्प्रिंग कोई डैम्पर नहीं है। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब इसका ये है कि आपके पास अगर हम फिजिकल मीनिंग देख ले सर, फिजिकल क्या? हाँ हाँ हाँ। म- अगर हम फिजिकल मीनिंग समझ लेना कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई, तो इसका मतलब ये है कि जितना बेस वाइब्रेट कर रहा है उतना एम्पलीट्यूड के साथ मास भी वाइब्रेट कर रहा होगा। नो नो, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन दिस। इस इक्वेशन 3.68 को अगर आप देखें ना, तो कैपिटल एक्स बाय कैपिटल वाई, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू दिस थिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं, इज इक्वल टू दिस वन। अब ये बेसिकली क्या है, असल में इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, अच्छा, आई शुड राइट दिस इज लेट्स से एक्स ऑफ टी स्मॉल डिवाइड बाय वाई ऑफ टी। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास होता है स्मॉल, ठीक है, जनरल वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑफ द मास डिवाइडेड बाय ऑफ दिस बेस एक्साइटेशन। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज जनरल वैल्यूज, वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दीज टू। ठीक है, कि आपके पास जो बेस एक्साइटेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, बिकॉज हम जो एब्जॉर्ब करते वो डिजाइन करते हैं ना, वो मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डिजाइन करते हैं, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मास है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इज बेसिकली ओवर देयर, यानी रेजोनेंस जो है ना हम मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर देखते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है ना इसको हम देखते हैं, लेट्स से दिस वन। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। अब यहां से बेस्ड ऑन जीटा एंड हाउ यू हैव एक्चुअली सेलेक्टेड द फ्रीक्वेंसीज रेशियोज एक्सेट्रा, हाउ दीज फ्रीक्वेंसी रेशियोज कम्स आउट ओवर देयर, इसके बेसिस के ऊपर जो है ना आपके पास ये चीज डिफाइन होती है। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दिस एक्स बाई वाई बेस्ड ऑन व्हाट, बिकॉज दिस एक्स बाई वाई इज इन टर्म्स ऑफ सिस्टम पैरामीटर, मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया। if you are talking about this or even this one, both are in system parameters, तभी तो हम इसको नोन मैक नोन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये चीज बेसिकली आपको वो वैल्यू देगी। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू मैंने आपको बताया कि 1 के बराबर है फिक्टिशियसली, ठीक है, दैट मे नॉट बी अ रियल केस, बट इफ दैट इज इक्वल टू वाई 1, तो तब हम कह सकते हैं कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वाई। व्हाट इज दिस वन? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेस एक्साइटेशन। जो बेस एक्साइटेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वही जो है ट्रांसफर हो रही है मास को। तो वो भी उसी तरीके से ये जो है ना वाइब्रेट करता है, वो फील करता है उस चीज को। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये 1 के बराबर नहीं है और लेट्स से 0.3 के बराबर है, 0.2 के बराबर है, तो अकॉर्डिंगली दिस एक्स विल बी 1/4 ऑफ दैट मैक्सिमम एक्साइटेशन एक्सेट्रा समथिंग लाइक दिस। बात समझ आ गई अभी? जी सर। ओके। सर जी ये जी आपने जो सर जी इसका एक सोल्यूशन निकाली है एक्सपी वाला, तो सर इसका होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ यही ये रिस्पांस ऑफ द सिस्टम होगा? कहाँ से कहाँ पे मैंने किया है ये वाला? पिछला स्लाइड से, इससे जो पिछला स्लाइड वो जो है ना हमने जो इससे पिछले स्लाइड में ये किए वाला? हुए एक्स, ये सर ये वाले ये एक्सपीटी हमने मालूम किए। हाँ हाँ। तो ये सर ये बस यही रिस्पांस ऑफ द सिस्टम है, मतलब इसमें होमोजेनियस वो नहीं होगा एक्स एच वो जो टी हम लोग मालूम करते। ये तो मैंने आपको बताया ना कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। वी आर सेइंग इस टॉपिक का ये टॉपिक का जो है ना ये है ही क्या चीज, ये क्या है कि दिस इज बेसिकली हार्मोनिक मोशन ऑफ द बेस। ठीक है, बात समझ आ गई? आप आई शुड से दैट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया, बल्कि बुक में अगर आप देखेंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट ही इस तरह है कि भाई अ कार इज मूविंग ऑन अ वेवी सरफेस। ठीक है, ये वेव इसलिए जो है ना, रिमेंबर, एनीवे, आपको पता है कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस है ना, फोर्सेस दैट इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं। ठीक है, तो एक अगर फोर्स प्लेट से नहीं है, इनिशियल डिस्टर्बेंस है, फिर तो हम फ्री वाइब्रेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर फोर्स वाइब्रेशन की बात करते हैं तो उसमें जो सिंपल वन है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, दैट इज साइनसॉइडल फोर्स। उसमें फिर रोटेटिंग अनबैलेंस, फिर जो है ना आपके पास दैट एक्साइटेशन फ्रॉम द बेस। इस तरह के पास जो फोर्स है दैट कुड बी एनी अदर पीरियोडिक फोर्स।
ठीक है, तो वो इतना सिंपल नहीं होता कि उसका, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की हद तक तो आप देख लेंगे, लेकिन हाउ टू सॉल्व दैट non-homogeneous equation to find out the response of the system, that solution is basically not very easy. उसके लिए Fourier series और इस तरह की चीजें. Similarly, if you look at the impulse force, तो step response जिसको हम कहते हैं, वो भी उसका solution आसान नहीं होता. इसीलिए जो है ना हम simple forces को देखते हैं. ठीक है, तो वन ऑफ देम इज कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो इसका जो जो टॉपिक है वो ये बता रहा है कि भाई हमारे पास जो है वाइब्रेशन और यू कैन से एक्साइटेशन ऑफ द बेस इज ड्यू टू दिस वेवी सरफेस, और वो क्या है, दैट इज बेसिकली दिस y इज इक्वल टू कैपिटल Y साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो फ्री रिस्पांस में है, जैसे ही आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम जो आपके पास लेट्स से द व्हीकल इज हियर, तो इसमें फ्री रिस्पांस होगा लेकिन वो वेनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है. वी आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन आर द स्टेडी स्टेट रिस्पांस. जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के बाद जो है ना इस वेवी सरफेस से आप नीचे आते हैं तो एक्साइटेशन आपके पास क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो एक्साइटेशन जब खत्म हो जाता है तो आपके पास जो है रिस्पांस मास का ये भी जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाता है आपके पास. ठीक है, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइदर बेस एक्साइटेशन और रोटेटिंग अनबैलेंस और इवन हार्मोनिक एक्साइटेशन, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज बेसिकली द पर्टिकुलर सोल्यूशन और द स्टेडी स्टेट रिस्पांस, बिकॉज जो आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है इट वेनिशेस, ठीक है, आफ्टर सम टाइम. तो जो लॉन्गर टर्म या जो लॉन्गर पीरियड में होता है आपके पास दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस. सो फॉर दैट रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस एक्सपी ऑफ टी. समझ आ गया आपको? यस सर, यस. यस सर. ओके. अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी को इन उन्हीं इक्वेशन से अच्छा और फाई को जो है यहाँ पे प्लॉट किया गया है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर. इसी इक्वेशन से अच्छा, ये जो प्रीवियस हमने दो इक्वेशन देखी ये वाली, अगर इन दो इक्वेशन से जो है ना आप प्लॉट करें इन चीजों को, तो ये जो है ना आपके पास डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और आर के दरमियान जो है ना ये ग्राफ है. ठीक है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. अच्छा, इस चीज को हम देखेंगे, राइट, वी विल एक्चुअली डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स. इसके डिफरेंट रेंजेस हैं. अच्छा, यू कैन सी दैट ये आपके पास एक रेंज है, राइट, दिस वन, एंड सिमिलरली वी आल्सो हैव अनदर रेंज. तो इसको बहरहाल यहाँ से आप डायरेक्टली देखें और फिर हम इसको जो है ना वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आपके पास किस रेंज में हम इस चीज को जो है ना इस किस्म के मोशन को जो है यानी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो किस रेंज को, फ्रीक्वेंसी रेंज को जो है ना हम एज एक्सेलेरोमीटर के लिए लेते हैं, किसको हम वाइब्रोमीटर के लिए लेते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे. बट यू यू कैन जस्ट लुक एट हाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा you have plotted this R against ट्रांसमिसिबिलिटी. जो जिस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी है ना, इस तरह फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी भी होती है. ठीक है, अब लुक, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है ना दैट इज नॉट डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो कितना इक्विवेलेंट फोर्स जो है ना वो ट्रांसफर होता है. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग इन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है, तो वो जो है ना हमारे पास ये दिस इज अल्टीमेट फार्मूला कि दिस इज एक्चुअली व्हाट इज दिस, F इज इक्वल टू के एक्स होता है ना. ठीक है, तो इसको हम F इज इक्वल टू के वाई भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो के वाई है, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वेवी सरफेस, वाई इज दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्प्रिंग तो नहीं है ना कि स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो रही है. ठीक है, बट यू कैन से दैट दिस इज एक्चुअली अ फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम. तो व्हाट इज दिस, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, this is the force, equivalent force due to base excitation, and this is the force that is felt by the mass. ठीक है, or this is actually transmitted to mass. तो इन दोनों का जो रेशो है ना इसको हम कहते हैं फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी. कि अगर आप ये जो आपके पास y ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल Y साइन ओमेगा t है ना, अगर आप इस तरह करें कि दिस F इज इक्वल टू के वाई करें, इक्विवेलेंट फोर्स अगर इसका फाइंड आउट करें, ठीक है, कि ड्यू टू दिस वेवी सरफेस हाउ मच फोर्स इज हैविंग और हाउ मच एक्साइटेशन इज देयर, तो वो के वाई है.
how much this is transmitted to how much force is transmitted to the mass. तो इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। एंड इट इज अगेन इन टर्म्स ऑफ सिस्टम पैरामीटर, ये ओमेगा और ओमेगा एन है, यू नीड टू नो अबाउट दिस, ये जीटा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ड्यू टू by having the values of these system parameters. What do we mean by system parameters? If you have already an existing system, you need to know about these parameters. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एट द राइट साइड इफ यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, you can find out, for example, this f of t is equal to this ky is equal to, let's say for example, 0.5, ठीक है। तो ये दोनों भी known है, ठीक है, because they are input to the system. So you can say that this much force is transmitted from the base to the mass, ठीक है। और mass क्या है? Mass is basically the driver, mass is basically the chassis, and similarly it is of that vehicle, ठीक है। तो कितना फोर्स जो है ना वो ट्रांसफर होता है, दैट इज बेसिकली फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। तो दो चीजें हमने देख ली, वन इज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी एंड द अदर वन इज फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी के टर्म को हम आगे यूज करते हैं टू लोकेट सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यू नो द वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसको भी फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी को भी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा जो है ना इसने प्लॉट किया है कि कितना जो है किस जीटा के ऊपर कितना जो है फोर्स ट्रांसमिट होगा। सो ऑब्वियसली फिर हम जो है क्या करते हैं कि उस जीटा को हम सेलेक्ट करते हैं जहां पे फोर्स की ट्रांसमिसिबिलिटी कम से कम हो, ठीक है। तो जीटा जो आपके पास है उसको हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें फोर्स की ट्रांसमिसिबिलिटी कम से कम हो, मीन उसके लिए प्रॉपरली जो है ना हम डिजाइन करते हैं डैम्पर को ताकि फोर्स की ट्रांसमिसिबिलिटी कम से कम हो। और ये जो किसी ने अभी पूछा कि जो हमारे पास कंफर्ट लेवल है वो इसी के ऊपर डिफाइन होता है, ठीक है। जितना कम फोर्स, जितना कम डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर होगा उतना जो है सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आपने डिजाइन करना होगा, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल दैट दैट सिस्टम कुड बी एक्सपेंसिव, ठीक है। बहरहाल ये चीज आपने देख ली, फिर इंशाल्लाह ये आप थोड़ा सा आगे देख लें, ये बल्कि इसको चले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसी चीज को हम आगे लेके जाते हैं। अच्छा, दिस इज जो हमारे पास x माइनस वाई है ना उसको हम z कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सक्यूज मी डिस्कस सर। करेंगे। जी जी सर ये के वाई थोड़ा समझे, के वाई क्या है सर? ये जो अभी ये फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी आपने के वाई बोले। अच्छा, के वाई क्या है? लोग यहाँ पे जो आपके पास वाई है ना, वाई, व्हाट इज दिस? एम्पलीट्यूड है वाई सर। इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेस एक्साइटेशन। बात समझ आ गई ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेस एक्साइटेशन। यस सर। यहाँ पे आप देख लें, अच्छा कहाँ, बल्कि यहाँ पे चले, वी कैन जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग। लुक यहाँ पे क्या है, ये बल्कि इस एग्जांपल को आप देख लें। अच्छा, ये वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, ये व्हीकल मूविंग ऑन अ रफ रोड, ठीक है। ये जीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है एंड दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ दिस साइनोसॉइडल एक्साइटेशन, ये भी आपको गिवन है। वेरी सिंपल है, कुछ छोटे मोटे फार्मूले यहाँ पे यूज होते हैं। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा आपको पता नहीं होगा तो साइकिल्स आपको गिवन होंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा इस एग्जांपल को आप देख लें, ओमेगा एन यहाँ से फाइंड आउट करता है, फिर जो है ना ये ट्रांसमिसिबिलिटी को फाइंड आउट करता है, ठीक है। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर भी लेंगे, लेकिन यू नीड टू लुक एट दैट। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि ये जो आपके पास बेस एक्साइटेशन है ना इसकी जनरल वैल्यू जो है दैट इज वाई ऑफ टी, ठीक है। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वाई। नाउ देयर इज नो, यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है। अच्छा लुक, यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है कि दिस इज एफ नॉट, लेट्स से कॉज ओमेगा टी। ये फोर्स भी लग सकती है ना, इस तरह कांस्टेंट फोर्स भी लग सकती है, साइनसॉइडल फोर्स, ठीक है। तो ये कहता है कि देयर इज नॉट अ साइनोसाइडल फोर्स डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द सिस्टम, बट दिस बेस इज एक्चुअली in contact with this surface,
let's say for example a wavy surface, and because of actually moving this base on that surface, an equivalent force is applied on the system, जो कि basically force है नहीं, that is basically excitation, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप इक्विवेलेंट फोर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज बेसिकली दिस के वाई, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द फोर्स ऑन दिस सिस्टम, ये जो आपके पास फोर्स है ना, दिस इज एक्चुअली द फोर्स ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। इक्विवेलेंट फोर्स ऑन दिस बेस, हाउ मच दैट इज ट्रांसफर टू दिस मास, तो उसको जो है ना फिर हम एफ टी कहते हैं, ट्रांसमिटेड फोर्स या फोर्स ट्रांसमिट दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बेस टू दिस मास। तो ये इक्विवेलेंट टर्म है। अच्छा, इक्विवेलेंट टर्म, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एनीवे बुक में तो आप स्टडी करेंगे तो सर वो आपने असाइनमेंट जो दिया था ना सर, वो असाइनमेंट थोड़ा अगर आप बता दें कि उसमें करना क्या है ना तो। अबाउट relative motion and vibration, some basic vibration measuring instrument, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सर जी वो असाइनमेंट अगर थोड़ा आप डिस्कस असाइनमेंट क्या करूं? थोड़ा डिस्कस कर ले सर, वो असाइनमेंट में करना क्या है, वो आपने आखिर में असाइनमेंट दी है उसकी समझ नहीं, वो तो ऑलरेडी इसमें वो तो साल भी है, तो उसमें करना क्या है सर मतलब। उसको आपने वो वहां पे जिस तरह भी हो गया है ना, लेकिन उसका आपने क्या करना है कि ओरिजिनल सिस्टम उसका डायग्राम ड्रा करना है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है, और उसके बाद जो है ना आपने उसके ऊपर फोर्स शो करनी है और इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, और उससे जो है ना रिस्पांस ऑफ द सिस्टम उसका फार्मूला आपने निकालना है। उसके साथ कोई लिखना मिखना नहीं है, लेकिन दैट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम शुड बी यू नो स्टेप वाइज आप उसको करें, ठीक है। और उसमें जो फिर हमारे पास टर्म्स यूज हुई है ना, उसको आप इंटरप्रेट करें कि भाई अल्टीमेट फार्मूले में जो रिस्पांस ऑफ द सिस्टम है उसमें क्या चीज किस चीज को शो करता है। तो एक 3 पेजेस का जो है ना आपने उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है। सर जी वो उसमें कुछ चीजें वो डायरेक्ट डायरेक्ट है ना, तो वो समझ भी नहीं रहे हो कहाँ से ना, वो कुछ इक्वेशन का रेफरेंस कोई और मतलब टॉपिक से लिए कि ये इसमें प्रूव हुआ है ना, और वो टॉपिक हमने डिस्कस भी नहीं किया ना, तो सर फिर उसके साथ क्या करें, वो हम डायरेक्ट लिखे। नहीं, वो तो यही तो असाइनमेंट होती है ना, कि जो चीजें आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही उसको आप सर्च करें, देखें कि भाई ये किस इक्वेशन को, अगर बुक में करते हैं तो बुक तो आपके पास पास में है, अगर बुक में नहीं है तो इंटरनेट के ऊपर देखें कि किस इक्वेशन को। असाइनमेंट तो होता ही इस तरह है कि भाई कोई चीजें जो है ना आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होंगी तो यू नीड टू लुक एट देम, ठीक है। अगर डायरेक्टली गिवन में है तो उसके असाइनमेंट में वो तो फिर एक लिहाज से जो है रीडिंग असाइनमेंट हो गई, दिस इज नॉट अ रीडिंग असाइनमेंट, राइट। और सर इसी में इसमें भी सर वही सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन बस वही रिस्पॉन्स होगा, और वो दूसरा तो नहीं होगा ना। ऑब्वियसली जब मास की जो रोटेशन है वो खत्म हो जाएगी तो जो आपके पास रिस्पांस ऑफ द सिस्टम होगा वो भी जो है ना वो वेनिश हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना दिस पर्टिकुलर रिस्पांस इज इम्पोर्टेंट, स्टेडी स्टेट रिस्पांस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। सर असल में इसमें एक इक्वेशन था, वो इक्वेशन 6.6 था कि 6.2 था, कौन सा इक्वेशन था अभी याद नहीं है सर एग्जैक्ट। वो सर उसने कोई प्रीवियस कोई टॉपिक से लिए है ना, तो वो फिर वो उसके लिए फिर अलग बहुत सी डेरिवेशन है, तो इस तरह तो सर फिर उसके लिए अलग डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तो फिर सर नहीं, डिराइवेशन तो असाइनमेंट आप बहुत ना, बड़ा हो जाएगा। डिराइवेशन आप ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू draw the schematic diagram, then the free body diagram show forces on there over that diagram, and then you need to derive the equation of motion। वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें सिर्फ राइट साइड के ऊपर आपके पास जो है ना फोर्स की जगह कुछ और चीज आ जाएगी, वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म में आ जाएगा। तो ये डिराइवेशन ऑफ मोशन हो गई। उसकी फिर सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन जो है ना आप देख लें और सोल्यूशन को इंटरप्रेट करें कि भाई इस सोल्यूशन में क्या चीज किस टर्म को शो, जो आपके पास डिफरेंट टर्म है, पैरामीटर्स है, वो किस चीज को शो करती हैं, तो वो आपने डिस्कस करना है। अब अगर आपके पास इस डिस्कशन के लिए कोई प्रीवियस टॉपिक आपने देखना है या इंटरनेट के ऊपर देखना है तो वो बेशक जो है ना आप देख सकते हैं। बाकी जो है और चीजें जो डिराइवेशन है या उसमें इररिलेवेंट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट एटलीस्ट यू नीड टू नो कि अल्टीमेट रिजल्ट में आपके पास जो टर्म है वो क्या शो चीजें शो करती हैं फिजिकली, वो आपने जो है जस्ट लिखना है।
ये जो सर बात है ना सर, असल में वो वही बस उसमें सर एक वो इक्वेशन था वो प्रीवियस टॉपिक से लिए, वो तो हम भी प्रीवियस टॉपिक से इक्वेशन ले लेंगे और फिर उसमें पुटिंग आगे कर लेंगे ना। लेकिन वो इक्वेशन किस तरह प्रूव हुए तो उसके लिए वो पूरा टॉपिक जो वो उसके लिए वही फिर डिराइव करना पड़ेगा, तो वही मैं बोलने के वो तो फिर हम लोग डायरेक्ट पुट करें। उसको आप डिराइव ना करें, वहां पे जाएं, उसको देखें और समझें, और उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखें। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलिए थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। यस सर। ठीक है सर, फिर ये रिकॉर्डिंग सेंड करें। ओके।